So this is Dr. John Institute. In this institute, there are so many facilities are there for the NEET examination. If you want to crack the NEET examination, so you come in Dr. John Siliguri, Dr. John Institute. Here, though there are so many good faculties is here, and always the doubt clearing session is occurring here. ऑल टाइम द फैकल्टीज आर अवेलेबल. यहाँ पे ऑल टाइम फैकल्टीज अवेलेबल है. नीट क्रैक के लिए डॉक्टर जेंस पूरा आइडियल है. ठीक है, तो माय वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए. तो टुडे आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो फर्स्ट वी हैव टू नो जो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक्चुअली पोटेंशियल नेम you have seen in the case of the gravitational potential energy. So like that, in electrostatic chapter there is the gravitational potential energy and electrostatic potential and electrostatic potential energy will discuss. Okay, now electric potential means electric potential means the minimum amount of work done which is needed to bring in unit positive charge from infinity to a point inside in the electric field. This is the electric field definition. The explanation is like this. Suppose this is infinity distance here. This is the infinity distance. And here one charge remains plus q. Okay. Suppose one unit charge, 1 unit charge plus 1 coulomb charge we have to bring in from infinity to at a point. We have brought in the plus unit charge at a point and assume to bring in unit positive charge at a point work done is required W infinity A. W infinity मतलब जो वर्क डन नीडेड, वर्क डन रिक्वायर्ड है चार्ज आने के लिए इंफिनिटी डिस्टेंस से ए पॉइंट तक. W infinity means to bring unit
positive charge from infinite distance to a point. To a point. This is the work done needed. So now see, instead of 1 coulomb charge, also you can assume, मान लीजिए instead of 1 coulomb charge, we are bringing in q naught charge. मान लीजिए instead of plus 1 charge, q naught charge आने के लिए वर्क डन लग रहा है infinity a. Okay. Unit or plus q naught charge. Okay. So to bring in plus q naught charge, work done is required W infinity a. To bring in unit positive charge के लिए work done is needed W infinity a by q naught. q naught चार्ज के लिए वर्क डन लग रहा है W infinity a. यूनिट चार्ज के लग रहा है W infinity by q naught. यही है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. Therefore we can write at a point the work done at a point the potential is VA is equal to W infinity a by q naught at a point potential, this one. Similarly, if we bring in the q naught charge at b point, मान लीजिए वर्क डन लग रहा है W infinity b, तो एट ए पॉइंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एट ए पॉइंट पोटेंशियल लग रहा है potential at a point the electric potential VB is equal to W infinity B by q naught. This is the electric potential at point B. So what is the electric potential difference? A and B point में कितना potential difference होगा? देखिए, तो therefore the potential difference between A and B is VB minus VA is equal to W infinity B by q naught minus W infinity A by q naught. ओके, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज में चलो. तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू W infinity B and W infinity A divided by q naught. Now see here, W infinity B and minus W infinity A, मतलब work done needed A से B. Again I am telling, W infinity B minus W infinity A means work done needed to bring in the charge q naught from A to B. So now we can write
This one we can write here WAB by Q naught. Here VB minus VA, this one. VB minus V is equal to W by AB. This is the potential difference. Actually potential, only word potential, only potential का existence नहीं है. Potential मतलब potential difference, potential difference होगा. So from this relation we can write here, then we can write WAB is equal to VB minus VA into Q naught. तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q naught. Charge is shifted, charge is transferred from A से B, then work done needed B पोटेंशियल माइनस ए पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो चार्ज शिफ्टिंग हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन. तो देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन वी कैन राइट इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इलेक्ट्रिकल वर्क डन is equal to potential difference into charge, shifted charge फॉर्मूला हो गया. ओके, दिस इज द concept of the electric potential. Now देखिए जब what will be the unit of electric potential? Now unit of electric potential, okay, unit of electric potential, unit of electric potential. Already we have known जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन V is equal to W by charge, वर्क डन बाय चार्ज, एंड वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल. चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का एक नेम है वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो V इज इक्वल टू W बाई Q. वर्क डन का डायमेंशन चाहिए, चार्ज है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन मतलब वी कैन राइट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. चार्ज मीन्स एम्पियर इंटू टाइम. फोर्स का डायमेंशन क्या है बोलो? ml t टू दी पावर -2, एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहां पे लेंथ मीन्स L डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू टाइम. तो देन वी कैन राइट हियर, टाइम तो ऊपर में जाएगा, एम्पियर में जाएगा. फाइनली डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर t टू दी पावर -3 a to the power ampere to the power -1. This is the dimension of the electric potential. Okay, this is the dimension of the electric potential. So now here electric potential
हो गया। देखो this is the unit of the electric potential, but if any charges, if any charge is moved from one point to another point in the electric field, work done is totally zero. For any closed loop, for the shifting of the charge, for the moving of the charge from one point to another point, टोटल वर्क डन हो जाएगा जीरो। यही है कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, और फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स फॉर एनी क्लोज लूप वर्क डन जीरो हो जाएगा। देखिए तो नाउ सी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स is the conservative force. Conservative force। देखो एज्यूम करो दो पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ए and one point is B. A charge is shifted A से B in this path, a path number 1. Another path, along another path is 2. Another path is 3. एक चार्ज शिफ्टिंग हो रहा है A से B तीनों रास्ता में, बट तीनों रास्ता में चार्ज शिफ्टिंग हो रहा है, बट नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन the path, only depends on initial and final points। ओके, ए से बी। देखो मान लीजिए एक चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, कितना वर्क डन होगा? तो WAB वर्क डन मतलब यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, मींस B पोटेंशियल माइनस A पोटेंशियल, जो चार्ज शिफ्टिंग हो रहा है मान लीजिए Q0, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा Q0। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। फिर मान लीजिए B से A ट्रांसफर हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? WBA और B से A एनी पाथ, WBA क्या होगा बोलो? VA माइनस VB इंटू Q0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार चार्ज गया ए से बी, फिर चार्ज आया बी से ए, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर द नेट वर्क डन W is equal to WAB plus WBA divided by Q0 plus, okay, sorry, total work done means this one,
then we can write here, then we can write WAB means VB minus VA into Q naught plus VA minus VB into Q naught. Q naught कॉमन ले लो, তাহলে Q naught VB minus VA plus VA minus VB हो जाएगा, VB VB कैंसल्ड, then Q into 0 is equal to 0. Therefore net work done is equal to 0. यही है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, नो वर्क इज डन. ओके, नेक्स्ट सी. तो नेक्स्ट पॉइंट इज what will be the electric potential due to the point charges. This is the derivation. What will be the electric potential due to the point charge derivation. This derivation is important for the CBSE board. So now see here, I am changing my page. Derivation of electric potential at a point due to a point charge, due to a point charge, due to a point charge, due to a point charge. See, again I am drawing the diagram. मान लीजिए एट ओ पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है. ए प्लस क्यू चार्ज के लिए एट पी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आर डिस्टेंस पे एट पी पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड, पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा प्लस क्यू चार्ज के लिए. तो ठीक है, देखो एंड एज्यूम करो दिस इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस, ए इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है ना. एंड एज्यूम देयर आर 2 पॉइंट्स, यहां पे 2 पॉइंट है ए एंड बी, बहुत स्मॉल डिस्टेंस ए और बी से, मान लीजिए डिस्टेंस dx, ठीक है. और एज्यूम करो ओ से बी तक डिस्टेंस इज x, ठीक है ना. प्लस क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस में प्लेस्ड है इनिशियली, ठीक है. अभी देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए बी पॉइंट में x डिस्टेंस पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड at B point, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज? नाउ राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity at point B due to the charge plus Q E
is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by x square. This is the electric field intensity. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, बिकॉज जो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलना पड़ेगा वो पॉइंट में प्लस यूनिट चार्ज है, एज्यूम करना पड़ेगा. तो देखो प्लस क्यू चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस वन चार्ज. ये तो बहुत स्मॉल है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा है प्लस क्यू चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स यहां पे ज्यादा. प्लस क्यू एंड प्लस वन, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. देखो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक. हाँ, चलो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड ई का वैल्यू, ई का वैल्यू दिस वन. एंड मान लीजिए we have brought in the plus q naught charge यहां पे, चलो प्लस q naught चार्ज इज प्लेस्ड एट बी पॉइंट, बी पॉइंट में आया, चलो चार्ज का ऊपर, प्लस q naught चार्ज का ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो फोर्स की F इक्वल टू क्यू ई. चलो यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन पे, F इज इक्वल टू q naught इंटू ई. दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन पे. एट दिस पॉइंट फोर्स हो रहा है इस डायरेक्शन पे. बट नाउ एज्यूम करो तो चार्ज क्यू नॉट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए, बी से ए आया, बी से ए आया, तो यहां पे तो वर्क डन करना पड़ेगा ना. वर्क विल बी हैव टू बी डन टू द अगेंस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट ई. एंड यहां पे डिस्प्लेसमेंट dx, चार्ज शिफ्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इधर में, एंड फोर्स का डायरेक्शन क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में क्यू नॉट ई, एंड इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है. चलो दोनों अंदर में एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है ना. चलो वर्क डन मतलब dw इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर dx, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट dx डॉट प्रोडक्ट फोर्स डॉट dx. एंड फोर्स का वैल्यू देखो F dx इंटू कॉस थीटा. F मतलब क्यू नॉट इंटू ई इंटू dx, एंड कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री. cos 180 डिग्री वैल्यू -1, cos 180 डिग्री is equal to -1. This is the value of cos 180 degree. Okay. Then we can write here q naught into e cos 180 degree -1 into dx. फिर देखो वर्क डन मतलब क्या है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. वर्क डन मीन्स दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स VA माइनस VB इंटू क्या, क्यू नॉट. क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. देन वी कैन राइट हियर VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx. ठीक है ना. मान लीजिए दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है VA माइनस VB वेरी स्मॉल, एज्यूम करो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी स्मॉल dV माइनस E इंटू dx, एंड dV E का वैल्यू वी नो 1/4 pi epsilon naught q by x square into dx. This is the potential difference between B and A. Okay, so now see here. Again I am writing here in this direction. In this direction I am writing. Now see. dV
इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां पे माइनस होगा, dx बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बट आवर टारगेट वॉज मतलब एट ए डिस्टेंस आर एट पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। तो वी कैन से जो चार्ज इंफिनिटी से पी पॉइंट में आना पड़ेगा, चार्ज विल बी शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट में आना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। टोटल मतलब इंटीग्रेशन। तो नाउ द टोटल पोटेंशियल dv, इट इज ऑल्सो द इंटीग्रेशन। कहां से आना पड़ेगा, पहले इंफिनिटी से, फाइनल कौन पॉइंट में, पी पॉइंट। चार्ज से पी पॉइंट कितना डिस्टेंस, आर, ए फाइनल लिमिट हो जाएगा। तो देखिए dv का इंटीग्रेशन, इनिशियल पोटेंशियल 0 एंड यहां पे भी, तो dv का इंटीग्रेशन v माइनस 0, ए भी हो जाएगा। देन इंफिनिटी से r माइनस 1/4πε0 dx बाय एक्स स्क्वायर। ए सॉल्व करो इंटीग्रेशन, माइनस इंफिनिटी से r, एक कांस्टेंट बाहर में आ जाएगी, 1/4πε0, ए ऊपर में जाएगा x⁻⁻2 इंटू dx। देखो x⁻n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है x⁻n+1/n+1, ठीक है ना, प्लस c देना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बट ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वी विल नॉट राइट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अप्लाई करो x⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय x⁻⁻2 + 1। तो देन वी कैन राइट हियर 1/4πε0, यहां पे माइनस दे दो, माइनस 1/ax हो जाएगा इंफिनिटी से r। देखो ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4πε0, पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो 1/r, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करो 1/∞। समथिंग बाय इंफिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए पार्ट 0 हो रहा है, दिस पार्ट टोटली 0, तो ओनली बचेगा 1/r। तो नाउ द पोटेंशियल v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। At which point we have to find the electric potential means 1/4πε0 constant into that charge, and at which point we have to find the electric potential that distance, q/r. But we have to keep in mind this is the electric potential due to the point charge only. ये जो potential हो रहा है ना point charge के लिए, only for point charge at any point. This is the electric potential. So today just I have derived this equation in short video today I have done. आप लोग को तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए। तो नीट क्रैक करने के लिए डॉक्टर जोन बेस्ट है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे हर टाइम फैकल्टी यहां पे है, डाउट क्लियर हो जाएगा ऑल टाइम। हम लोग का ऐप है, ऐप में डाल सकता है प्रॉब्लम डाउट, हम लोग मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Always we are ready to solve the numericals, always ready to solve the problems of you, all time, there is no problem. Dr. Zone is the best to crack the NEET and IIT JEE, and here environment is very good, environment अच्छा है, ठीक है ना। तो today up to this, next again we will meet with you, all the best.